Good morning, students. Today we are going to start sum number 7 of mixed exercise 2. We already have finished mixed exercise 2 up to sum number 6. So write down date and day on sum number 7th. Right? Statement is find the perimeter of the following figure. So first figure is 1, 2, 3, 4, 5, 6. It's a hexagon having 6 equal side. तो इसके equal side भी हैं but shape is a hexagon, right? So how to solve its perimeter? We will add all the sides of this shape, right? So students, you can fill colors also in this diagram. Let's solve perimeter of the given figure. Sides of a given figure are 2 centimeter each. Are 2 centimeter each. हर एक साइड 2 सेंटीमीटर है. Its perimeter of a hexagon. So given figure is a hexagon. It is equal to sum of its 6 sides. तो 6 sides जो भी होंगी उनका आपने सम सॉल्व करना है. बट इस डायग्राम में सभी साइड्स इक्वल हैं. सो 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर एंड प्लस 2 सेंटीमीटर. सो इट इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10 प्लस 2 12. It's 12 centimeter, right? Now it's B part. B part is a square having 6 centimeter. So side of a स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती है तो हम 1 साइड नोट डाउन कर लेंगे. इट्स अंडरस्टूड कि 4 साइड्स भी इक्वल होती हैं. 6 सेंटीमीटर. पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर तो स्क्वायर का पेरीमीटर है 4 इंटू साइड, राइट? 4 इंटू साइड इज 6 सेंटीमीटर. 4 इंटू साइड 4 इंटू 6 24 centimeter, right? Now so students, you will solve its C and D part yourself. Now I'm going to solve its 8th part. Find the perimeter of the square. Statement is sum number 8. Find the perimeter of the square. तो स्क्वायर का पेरीमीटर सॉल्व करेंगे. We know perimeter of a square is equal to 4 and perimeter of a rectangle is equal to 2L plus B, and perimeter of a triangle is sum of its 3 sides, and perimeter of hexagon is sum of its 6 sides, right? So statement part A, S is equal to, S means side, 9 centimeter, right? So perimeter of the square स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड. स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड. 4 इंटू साइड 4 इंटू 9 सेंटीमीटर. 9 4s are 36 centimeter. This is our answer. So you will solve its B part yourself. Next is sum number 9th. Find the perimeter of the triangle, right? So A part is 9 centimeter, 4 centimeter and 6 centimeter, right? So we know perimeter of triangle is sum of its 3 sides. A is 9 centimeter, B is 4 centimeter and C is 6 centimeter, right? So perimeter of a triangle. तो triangle का perimeter sum of its 3 sides
थ्री साइड्स, थ्री साइड्स का सम ए साइड बी प्लस साइड सी, सो 9 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, 19 centimeter. Clear? This is our answer. So I have solved A part of sum number 9. There are two parts. Clear? Now we will do extra concepts of chapter number 12. Right? So let's do fill-ups. The measure of surface enclosed by a plane figure is called its area. जो भी मेजरमेंट होती है सरफेस की जो इनक्लोज होती है प्लेन फिगर से, मींस किसी सरफेस पे कोई प्लेन फिगर जितना स्पेस कवर कर रही है, दैट इज कॉल्ड एरिया. एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ. थर्ड, साइड इनटू साइड इज अ पेरीमीटर ऑफ, साइड इनटू साइड इज अ पेरीमीटर ऑफ, so 4 into side is a perimeter of a square. 4 into side किसका perimeter होता है? Square का, right? Next, fourth, perimeter of a triangle is the sum of its, triangle का perimeter is a sum of its three sides. Triangle का perimeter क्या होता है? इसकी three sides का sum, right? Next, dash is the sum of all the sides of a polygon. तो ये क्या होता है? Perimeter. Perimeter होता है sum of all the sides of a polygon. Clear? Next is mental maths. First, area of a square whose side is 9 centimeter. तो किसी स्क्वायर का एरिया जिसकी साइड 9 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया कितना होगा? वी हैव फोर ऑप्शंस गिवन, 81 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो सबसे पहले हमें स्क्वायर का एरिया क्लियर होना चाहिए. स्क्वायर का एरिया क्या आता है? साइड इनटू साइड, सो 9 इंटू 9 81 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी. सेकंड, पेरीमीटर इज ऑलवेज गिवन इन, तो पेरीमीटर होता है और किस में गिवन होता है? सेंटीमीटर मीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में, या किसी में भी नहीं. तो पेरीमीटर सिंगल यूनिट में गिवन होता है सेंटीमीटर एंड मीटर में, मीन्स ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट. थर्ड, पेरीमीटर ऑफ अ पेंटागन इज अ सम ऑफ इट्स, सम ऑफ इट्स कितनी साइड्स का सम होता है पेंटागन? 4, 5, 3 और 6. पेंटागन 5 साइड्स, राइट, सम ऑफ इट्स 5 साइड्स. नेक्स्ट फोर्थ, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर, एरिया किसका कैलकुलेट करना है? रेक्टेंगल का जिसकी डायमेंशन 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है. तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 6 इंटू 8 48 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वेयर. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट. नेक्स्ट फिफ्थ, एरिया इज ऑलवेज गिवन इन, तो एरिया किस में गिवन होता है? पेरीमीटर सेंटीमीटर मीटर में गिवन होता है और एरिया हमेशा स्क्वायर में गिवन होगा, राइट. सेंटीमीटर मीटर नो, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर यस, राइट. तो क्यूब किस में होता होगा? क्यूब होता है वॉल्यूम में. ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि पेरीमीटर में सेंटीमीटर मीटर होते हैं मेजरमेंट, और स्क्वायर में एरिया ऑफ एरिया में स्क्वायर में होते हैं और वॉल्यूम में क्यूब में होते हैं, राइट. थर्ड, ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड. नो, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड, सो इट इज फॉल्स, राइट. नेक्स्ट सेकंड, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, यस. नेक्स्ट, पेरीमीटर इज अ डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ पॉलीगन. Perimeter is a distance covered along the boundary of a polygon. के पेरीमीटर किसी भी पॉलीगन की बाउंड्री का जो भी डिस्टेंस होता है वो होता है, यस इट इज ट्रू, राइट. नेक्स्ट इज पॉइंट 4, द मेजर ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस enclosed by a plane figure is called its area, yes true. फिफ्थ पॉइंट, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर अनइक्वल,
तो ये भी रेक्टेंगल की फॉर्म में है, तो इसकी अपोजिट साइड्स अनइक्वल होती हैं? नो, इट्स फॉल्स। सो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर, understand the difference between both, right? And also understand concepts which are extra. So note down these concepts in your notebook number 1. Fine? Okay students, thank you.